Welcome to the first episode of Talk Series at Rishihood University. In our university, we keep talking about creating leaders for impact. But what does that actually mean? Who are the leaders? What is leadership? How do we imbibe such skills in our day to day lives? These are the few questions that our students, our faculty members, and each one of us keep grappling on day to day basis. And that is why we thought of creating a series where we'll bring in leaders, experts, and multiple such great people to talk about leadership, especially the ones who live such qualities in everyday basis, which is the qualities that are part of their profession. And today, in the first of our episodes, we have with us Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha. Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha is an awarded Sena Medal, a gallantry awardee, battle injured speaker, corporate trainer, actor, influencer, writer, poet, and much more. He was born in Bihar, who after class 12th joined the AIF as an airman, continued his studies, did his graduation, cleared CDS, and became an officer in the army. Of the many duties in the army was also his intense counter-terrorism battles in Kashmir that also earned him Sena Medal. Gallantry for killing 6 terrorists and a gunshot wound 2 when a bullet tore through his face, jaw and neck. His being alive is a miracle. In his new life, he began to express himself through his pen and voice, stories of the courage and sacrifice through poems, documentaries, live talks, and created a light and sound show conceived, written, and narrated by him. He also gives live commentaries at various solemn occasions and also on Doordarshan that include Army Day parades and the inauguration of the National War Memorial. He applied for premature retirement for the army, and by the time he was released, he had done an acting course from Anupam Kher's Actor Prepares and a voice coaching course and began to learn to write movie scripts. The Gillette ad, based on his life and featuring him, was hugely successful the world over. It got shortlisted at Cannes. His talks and videos are not only inspirational but thought provoking as well. His conversation with the terrorist is one such video. When the country went into corona lockdown, he voluntarily joined one of the biggest COVID hospitals in the country. In his appearance on Zee TV's Swan Swar Bharat, he displayed his exceptional poetic skills that went viral. Colonel Sinha speaks at TEDx, corporate world, school, colleges, and other forums. He is also a leadership coach at Rishihood University, Sonipat, and today we are glad to have a live conversation with him. Thank you so much, sir, for being here and coming to Rishihood University for an interaction with us. Thank you so much for having me here. It's an honor and privilege to be here. And काफी दिनों से associated हूँ. But yeah, visit second time हुआ, so it's feeling good. Yeah. We are glad you're here. सर, आपका वो स्टोरी जिसमें आप ने एक बहुत ही टफ जर्नी, एक जब आप आर्मी में थे आपने एक बहुत टफ जर्नी देखी है. You were attacked by a terrorist and after that your entire life changed. आप उसके बारे में ब्रीफली बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? Actually, attacked by the terrorist तो खैर पहले भी कई बार हुआ था, but this time, yeah, I got shot, and so that what happened is after I got shot, there's a journey that began. For whatever duration that journey was, today that journey is my benchmark for almost everything, and the journey was on the path of death. तो जब मुझे गोली लगी थी, I fell down. I knew कि it's over. Not that I wanted to die, not that I wanted to live. It was not ऐसा कुछ भी नहीं था. It is just that एक क्षण था. I was in that moment. Anything could have happened, and I was on neither side. But ये था कि you got to keep doing your karma. Right. So at that moment, I felt कि my duty is, my karma, what is right for me is that I keep trying to breathe, which is very difficult at that time because the bullet had gone through my throat. It entered and tore through my throat and came back. So, and I thought, that is what I'm supposed to do, and I was trying to do that. Then I was picked up and also, I'll not take the physical part of it, I'll not get into it. But it was a journey. What I felt is that now I am a soul.
I had felt detached from my body. I knew the body is there, but my attachment to the body had gone for that moment. उससे कोई मोह नहीं था मुझे. शरीर है बट उससे कोई मोह नहीं था. एंड फिर मुझे वो सब पूरे उसमें जो था कि यू नो एंड आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, ऋषि होते थे, आज भी होंगे, वो शायद बहुत साधना करने के बाद उस स्तर पे पहुंचते हैं जहां वो सब कुछ मोह माया से वो ऊपर उठ पाते हैं. जी. तो मुझे लगता है मेरा सौभाग्य था कि मैं उतने क्षण मैंने काटे जिसमें मैं इन सब से अलग हो गया था. मेरे संबंधों से ये बोध हर चीज़ का था, क्योंकि मैं आई स्टिल नॉट लेफ्ट दिस वर्ल्ड, सो आई न्यू वेयर आई एम, व्हाट इज हैपनिंग विद मी. आई न्यू आई हैड रिलेटिव्स, आई हैड अ फैमिली, आई न्यू दिस कंट्री, आई न्यू द पीपल. मतलब एवरीथिंग वाज mentally I was aware, but I was totally detached with everything. Nothing or none of these would have made any difference to me, and I was going on that path. So that moment, and I still take it as a benchmark today. And probably is this one question of yours is an answer to probably every question that you would be asking henceforth, and anybody could be asking. Is that I always, now the benchmark for me is that now whatever I do, I again do it for that moment, because that moment will again come. So how will you define that moment, sir? It looks very fascinating, but आप जब उस moment पे थे, can you describe it in words, or is it beyond that? It is beyond words, obviously, because very few people have been there and come back. And people जिन्होंने भाषा बनाई है वो उन्होंने इस दुनिया के लिए बनाई है. हाँ, मैंने कहा ना कि वो एक डिटैचमेंट, जो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट हो जाता है हर चीज से. बट कर्म का बोध रहता है. ये मेरा कर्म है. मुझे प्रयास करते रहना है कि मैं सांस लूं. हालांकि वो सांस लेना बहुत मुश्किल था. समथिंग लाइक जैसे आप भागते हैं, बहुत लंबा भागते हैं, फिर आपकी सांस टूटने लगती है, लगता अब नहीं हो पाएगा. उससे भी 1000 गुना मुश्किल था मेरे लिए एक एक सांस खींचना. बट दैट वाज माय कर्म. आई हैड टू डू दैट. सो आई वाज जस्ट डूइंग दैट. एंड अब मैंने कहा मैं उस यात्रा पे चल पड़ा था. जस्ट लाइक वी सेट ऑन अ जर्नी, एक्साइटिंग जर्नी, तो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट विल हैपन अहेड. सो इफ यू मूव टू अ गुड डेस्टिनेशन, सो इज थिंकिंग वहाँ पहुँचेंगे, ये करेंगे, वहाँ क्या होगा. सो आई हैड स्टार्टेड बिगन टू थिंक अबाउट दैट कि अब मैं आगे जा रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा. सो आई टेक यू बिट अहेड ऑन दैट. व्हेन आई बीच में कई बार लगा कि मैं चला जाऊँगा जी. फिर बचता गया. वो फिजिकल जर्नी है, वो उस पर अभी नहीं आ रहा हूँ. बट हॉस्पिटल में जब मैं होश आया मुझे दोबारा, तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे था. और वेदर इट वाज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया और व्हाट, आई डोंट नो, बट आई कुड नॉट मूव एनीथिंग. आई कुड नॉट इवन गिव एन एक्सप्रेशन. तो सारे लगे हुए थे गैजेट्स. तो मेरी सांस जाने लगी. सांस जाने लगी. अब मैं लेटा हूँ, चारों तरफ लोग हैं, लेकिन मैं जो ना डेस्परेशन का एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रहा हूँ. उंगली भी हिला नहीं पा रहा था. तो मेरे को लगा मैं बताऊं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता. जस्ट लाइक तो मुझे लगा यार अब छोड़, हो गया, यू गोइंग सिंकिंग. सो बट ओनली थिंग एज आई फेल्ट कि यार इस बार ना, पिछले 2-3 बार जब टूट रही थी तो मैंने भगवान को याद नहीं किया था. तो मैंने कहा भगवान ने मुझे मौका दिया है कि याद कर ले. इस बार दिमाग में आ गया. तो मैंने जो कुछ आता था मन में, शंकर जी को याद किया, जो छोटे मोटे, और ओके, let's go now. And I lost consciousness. And now I know that I lost consciousness, but then I felt I'm dying. फिर दोबारा जब चेतना जगी तो मेरी आंखें बंद थी. मुझे क्या लगा कि अब मैं ऊपर आ गया और अब मैं आंख खोलूंगा और सामने मेरे चित्रगुप्त बैठे होंगे रजिस्टर लेके, कर्मों का पूरा हिसाब किताब. अब मुझे वैसा ही फीलिंग हो रहा था जैसे कि आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं. अंदर घुसते हैं ना, बाहर फीलिंग होती है कि अभी पता नहीं ये पूछेंगे और मेरी तैयारी तो पूरी है नहीं. तो मैंने कहा ये सवाल जो कर्म किए थे जो गलत, मैंने कहा इसका क्या जवाब होगा. फिर अचानक याद आया कि यार कहीं सुना था हमने कि जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको स्वर्ग मिलेगा, वीर भोग्या वसुंधरा. मैंने कहा यार अपने पास तो वीआईपी पास है. मैंने कहा अब कॉन्फिडेंस है, अब अंदर चलते हैं. अब आप बोलते हैं चित्रगुप्त को रजिस्टर बंद करो यार, अपना तो वीआईपी पास है, डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर एंट्री दो हमें. तो हमने आँख खोला.
आँख खोला तो एक्चुअली स्पीकिंग आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि मैं बेड पे ही बैठा हूँ। वही डॉक्टर नर्स चारों तरफ लगे हुए हैं। हमने कहा ये तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ यार, यहाँ कहाँ स्वर्ग से जाते जाते अस्पताल में बैठे हम तो अभी भी। तो एट टाइम्स रिग्रेट भी होता है कि यार स्वर्ग जाने का मौका था, बड़ा छूट गया यार, अब कर्म करके जाना पड़ेगा, ये बड़ा लंबा रास्ता है। वो इजी था। जी। बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट आई नो दैट दैट मोमेंट इज अगेन गोइंग टू कम बैक सबके जीवन में। एंड अब मैं वही सोचता हूँ कि मैं वो करूँ जो उस वक्त मुझे याद आएगा। फिर जैसे उस वक्त याद आ रहा था मैंने ये किया, तो जो नहीं सही था वो मैं आई वॉज फीलिंग कि यार कैसे सामना होगा। तो मैं अब हमेशा वही सोचता हूँ कि यार अब मैं वो करूँ कि उस वक्त जब मेरे सामने वो रखा जाएगा तो आई न्यू कि हाँ ठीक है, ये तो मतलब आई डिड राइट, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बट हाँ वहाँ वापस जब जीवन में जैसे ही पता चल गया कि बच गया हूँ मैं, देन अगेन स्टार्टेड स्टेपिंग बैक इनटू दिस वर्ल्ड। तो फिर मोह माया वगैरह में फिर से हो गया है। बट हाँ दैट्स अ डेली स्ट्रगल दैट आई कीप गोइंग थ्रू इन माय लाइफ नाउ। तो हमारे गुरुज ऋषिज सब लोग बोलते हैं कि आपकी लाइफ बहुत छोटी है, मतलब कुछ है ही नहीं, बहुत मीनिंगलेस है, एंड डेथ इज द रियलिटी। Yeah, death is the बट reality. आजकल इसका नैरेटिव बहुत चेंज हो गया ना, वी कीप सेइंग लाइफ ओनली कम्स वंस, नहीं, live what you want to do, नहीं, that's wrong. you know, drink hard, party harder, That's- break the rules. That's absolutely So what is your take That's on absolutely this? wrong. That's absolutely wrong. पहली बात तो लाइफ इज हमारा जो परिभाषा है, लाइफ इज अटैच टू बॉडी। वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। एंड ये कभी नहीं मरती है ना जन्मती है, इट कंटिन्यूस। सो इट एंड वी आर हियर फॉर अ पर्पस। आई एम नॉट टेलिंग कि यू डोंट हैव टू एंजॉय, बट वी आर हियर फॉर अ पर्पस। हर व्यक्ति की नियति तय है कि आपको क्या रोल दिया गया है इस पूरे उसमें। आपको आना है, एक ही लक्ष्य है हमारा, धरती पर आना। जी। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, मानवता का जो प्रोसेस है, जो पूरा मतलब जो सृष्टि का जो नियम है जो ईश्वर ने तय किया है, उसमें आपका एक रोल है। आप उस रोल को पहचानें और उसको फुलफिल करें। आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत सीरियस हो जाओ, साधु बन जाओ, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक ए गेम, स्पोर्ट। It's like a go sport. You are a cricketer, so you were sent into with a role. So there are cricketers like I remember Virendra Sehwag once telling कि वो गाना गाते थे, fantastic. Sing your way along, enjoy the journey, but you got to fulfill that role. Right. As long as you can play these shots and give the team the score that it needs in the period that what it is, fantastic. Enjoy your game, but you cannot say that you know मैं गेम नहीं खेलूंगा बट आई जस्ट सिंग ए सॉन्ग एंड पार्टी ऑन द पिच। Right. नो, डेस्टिनी हैज सेंट यू ऑन दिस पिच टू कम एंड स्कोर। But my role is also very different. I'm also a wife, I'm also a mother, I'm Yes. also a daughter, daughter-in-law. Yes. I'm also like CEO of this university. So how do you in multiple roles, how do you define your one role or one purpose? That is it for everyone to understand. And I feel you should learn and get inspired and from anyone. But ultimately आप हर व्यक्ति को अपनी नियति पहचाननी है, और वंस आपको वो पहचान जाए तो आपको उसको फुलफिल करना है 100%। इसको आप कंपेयर मत कीजिए किसी से भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रामायण था, तो राम जो युद्ध करने गए थे उसमें राम का एक रोल था, लक्ष्मण का अपना रोल था। जी। उसी राम की सेना के आखिरी वानर का अपना रोल था। राम, श्री राम और वो आखिरी वानर दोनों ही इक्वली सक्सेसफुल हैं। अगर वो सोचे कि मैं भी वानर हूं, हनुमान जी भी वानर ही हैं, वो देखो कितना नाम कर गए, मेरा नहीं हुआ। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये मनुष्य है जो इतिहास लिखता है, तो उसमें नायक और खलनायक डालता है बिकॉज उसने लिखना है और सुनाना है इस तरीके से कि लोग सुने, लोग पढ़ें। तो वो शायद उस कंपल्शन में दे राइट द वे वी राइट सिंस टाइम मेमोरियल। बट ऊपर जब हम जाएंगे ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसमें वो कोई नहीं पूछेगा कि तू राम की सेना में था, तो तू राम की सेना में तो हनुमान जी ने इतना काम किया, तूने इतना ही काम क्यों किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी नियति में जो दिया गया था, क्या तुमने वो रोल पूरा निभाया, निर्वाह किया? दैट इज वॉट इट इज। इफ यू हैव डन 100%, दैट्स वॉट इट इज। एंड वो रोल बड़ा क्रूशियल होता है सबका।
इतिहास में आए ना आए वो अलग बात है। जैसे कि उसी रामायण में नल और नील का रोल था पुल बनाना, वो कोई नहीं कर सकता था, पूरी लड़ाई नहीं होती वो पत्थर अगर वो सिर्फ हाथ ना लगाते तो कहने को सिर्फ हाथ ही लगा रहे थे वो, लेकिन वो उनका वही बहुत क्रूशियल था। सो एवरीबडी इज वेरी क्रूशियल। सो इवन इफ यूर हाउस वाइफ, आप डॉटर इन लॉ हैं, आप माँ हैं, आप यहाँ पर सीईओ हैं, आपका अपना अपना रोल है। और इसको तुलना ना करें और ना कंपटीशन करें। दैट इज व्हाट आई हैव अ बिट ऑफ थिंक कि हम आजकल सबको एक प्रतिस्पर्धा की भावना में डालते हैं। दैट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट डू दैट। आपका जो रोल है, डू इट टू योर बेस्ट। इफ अगर आपके नियति में राम बनना लिखा है, बी द बेस्ट राम। आपके नियति में लक्ष्मण बनना लिखा है, जस्ट बी द बेस्ट लक्ष्मण पॉसिबल। बट व्हाट वी आर टीचिंग टुडे इज दैट यू हैव टू बी द टॉप। सो अगर वो राम नहीं बन पाया तो द लक्ष्मण ऑफ टुडे is feeling envious of Ram. Why am I number 2? How can I uptake him and be the number 1? That's not right. आपकी नियति में लक्ष्मण है, आपकी नियति में हनुमान है, आपकी नियति में सुग्रीव है, आप अंगद हैं, नल हैं, नील हैं, जो हैं. Just be the best version of that, and you are equally successful as much as Ram was. That is the. So, sir, what do you think is the purpose of your life? The purpose of my life is, as I told you, I want to be, face death again, and I want to be feeling. I won't say good. I want to be feeling right. That I've done everything right in my life, as much as possible. Right. I know 100 आने चाहिए, 100 मुश्किल है, but you at least know कि 100 out of 100 is the score that one should desire for. अब वो स्कोरिंग अलग है, वे हम लोगों ने जीवन में मापदंड जो बनाए हैं उससे वो थोड़ा अलग है. And I keep coming across, I'm telling you one more thing, I keep coming across people like once someone asked me, a student in a school asked me, sir, what are your inspirations? Probably he was expecting me to give out some big names. They are there. I also keep getting influenced by some big names. But I told I keep getting influenced by ordinary people around me. I work in a hospital. I walked into a Corona hospital voluntarily when Corona broke out. And I look after the housekeeping and patient care attendant people. And I see a lady of 55, 60, सुबह सुबह 3 बजे उठती है, खाना बनाती है, 2 घंटे की यात्रा करती है, लोकल ट्रेन में पहुंचती है, निष्काम भाव से वो पेशेंट कोरोना का जिसको कि उसके संबंधी नहीं छूना चाहते, उसकी वो सेवा कर रही है, शरीर में कपड़े बदल रही है, बाथरूम साफ कर रही है, उसके कपड़े साफ कर रही है, वापस जा रही है और फिर घर पे जाके काम कर रही है. तो मुझे ये पता है कि वो डेथ वाले उसमें ही इज अहेड ऑफ मी, शी इज अहेड ऑफ मी. नाम उसका कहीं नहीं इतिहास में. बट आई नो दैट व्हेन शी गोज अप शी विल गेट हायर मार्क्स देन. तो हम जिस तरह से जज करते हैं सफलता असफलता, ऊपर का जजमेंट थोड़ा सा अलग है. सिंपल है एक्चुअली, हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है. जी. So that is what it is. So that's what is my purpose, to be able to face. Yeah, that. talking about right things, right, and doing right things in Yeah. life, and we've seen that video of yours where you're trying to put down your military uniform for the very last time, Yeah. and आपके लिए बहुत difficult है, बहुत emotional moment है, Yeah. वो आपके वापस वो wardrobe में टांगना. हाँ. Do you want to talk about that to our audience? Yeah, it was very very difficult and to इतने दिनों से पहनी अपनी यूनिफॉर्म एंड उसके बाद यू नो दैट अब आखिरी बार है ये उतार रहे हैं हम. सो इट वेरी पेनफुल एंड द रीजन व्हाई इट वाज पेनफुल इज लाइक बिकॉज इट वाज लाइक पीलिंग ऑफ योर स्किन. चमड़ी उतार रहे हो. सो दैट्स द रीजन इट वाज वेरी वेरी हर्टफुल एट दैट टाइम. That's why that tears that you won't be able to wear that. Was so much in love with that. But ऐसे इतना attachment कैसे होता है यूनिफॉर्म से? हमने स्पोर्ट्स में भी देखा है when you know they wear the national jersey for the first time and they're full of pride, and so is army, all the defense forces. Yes, yes. So what brings that, you know, It that changes pride you. and confidence and so much attachment? वर्दी वो बदल देती है इंसान को अंदर से. यूनिफॉर्म पहनते ही आदमी अलग हो जाता है. साहस देती है. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स कैन गिव यू दैट, यू नो, क्योंकि बाकी for most of the other things to feel probably you need that external validation. But uniform is something, आप कमरे में अकेले हो, आपने यूनिफॉर्म पहन ली, you feel so good, you totally feel a different person. पर ऐसा यूनिफॉर्म स्कूल की भी होती है. मतलब बहुत सारी
बहुत सारे ऐसे काम हैं, जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं जिसमें यूनिफॉर्म होती है, बट वो एक जब स्पोर्ट पर्सन या फिर कोई डिफेंस फोर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव पहनते हैं तो एक इट्स अ स्टोरी टू टेल, यू नो, इट्स आई हैव गॉट द इट्स ए स्टोरी टू यूनिफॉर्म. टेल, इट्स ए कमराडरी, भाईचारा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस यूनिफॉर्म में मेरे लिए खासकर, मैंने उस यूनिफॉर्म में बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत खून बहाया। मेरे अपनी यूनिफॉर्म में मैंने अपना खून बहाया। मेरे हाथों में अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट पीपल, तो उनका खून भी उस यूनिफॉर्म में बहुत था। तो रक्त रंजित था, काफ़ी पसीना बहाया था, काफ़ी खून बहाया था उस यूनिफॉर्म में। तो वो सब कुछ था, वो इट वाज रिप्रेजेंटिंग दैट एंटायर जर्नी ऑफ स्ट्रगल, प्राइड, ट्रेनिंग, कमराडरी, ब्रदरहुड, दैट वी लिव फॉर ईच अदर, डाई फॉर ईच अदर, जो बाहर थोड़ा सा मुश्किल है वो भावना। जी. एंड सबसे बड़ी बात है कि इट रिप्रेजेंट्स इंडिया, भारत वो रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज आप लड़ते हैं, बाकी सारे यूनिफॉर्म में भी आप करते हैं, बट वो लड़ते हैं सेना की यूनिफॉर्म में। आप आई एम नॉट, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, हर संघर्ष का अपना महत्व है, बट बाकी किसी भी संघर्ष में ना, अगर हम मिस्टेक करते हैं, देयर इज ऑलवेज ए चांस टू कम बैक, राइट। एज ए नेशन भी, हम राष्ट्र के रूप में भी अगर हम गलती करते हैं, वी कैन कम बैक। मान लीजिए कि हम आजकल रिग्रेट करते हैं कि अगर हमारी स्वतंत्रता के पश्चात हमने कुछ चीज़ें और सही होती तो हम आज जहाँ हैं वो शायद 20 साल पहले होते। कोई बात नहीं, 20 साल बाद आ गए, बट सैनिक के रूप में आप गलती करते हैं, इट इज, यू कैन नॉट कम बैक। एज ए नेशन, एज राष्ट्र के रूप में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। एंड इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से भी जब आप गलती करते हैं, यू प्रोबेबली द प्राइस दैट यू पे इज इन ब्लड, इन लिम्स, इन लाइफ। तो ये सारा चीज यूनिफॉर्म से जुड़ा रहता है। Do you want to describe any incident which you felt was your mistake? I did a couple of mistakes in that operation. We had surrounded the village, and I knew, I had a bit of idea that there could be some terrorists. So थोड़ा सा बैकग्राउंड है, we are doing, I had fantastic men, I had गुरखास, मेरी कंपनी बटालियन जो थी वो गुरखास की थी, तो we were too good, the boys were too good. The result of that was that उनमें थोड़ा हमारा खौफ था, और जवान अच्छे होते हैं तो नाम कमांडर का होता है, तो हमारा नाम था। तो वो था कि जब सुबह सुबह हमने अनाउंस किया कि भाई हम आ गए हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी अंदर खलबली मची होगी जब, बट दे डिसाइडेड टू नॉक मी ऑफ। दे न्यू कि द ओनली वे दे कैन एस्केप इज नॉक मी ऑफ। एंड इसके पहले भी दे हैड ट्राइड क्वाइट ए फ्यू टाइम्स, बट डेस्टिनी के भाग्य था कि मैं बच गया था। सो इट इज इन दैट एंडेवर कि, एंड हम क्या कर रहे थे, कोलैटरल डैमेज ना हो, इसकी वजह से हम कर रहे थे कि मैं अनाउंस कर रहा था कि सिविलियंस जो है बाहर आ जाए। तो हमने घेर लिया था, पर हम अंदर नहीं जा रहे थे, कि अंदर गए और गोलीबारी चालू हो गई सिविलियन में। तो उसमें वक्त लग रहा था, सुबह सुबह 1-1.5 घंटे लगेंगे लोगों को उठने। 5 बजे सुबह आप कहीं पर गाँव को घेर के बोलो कि आप बाहर आ जाओ, तो वक्त समय लगेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम, उनमें से 3 लोग अंदर आपस में दे डिसाइड, ये सब बाद में मुझे पता चला, मेरे सीईओ साहब ने बताया, उनको बाद में इंटेलिजेंस मिली अंदर क्या हुआ। तो वो तीनों ने डिसाइड, तीन लोगों को नॉमिनेट किया गया कि तुम फिदाई बनो और उसको जाके ख़त्म करो। दैट्स द ओनली वे, जब तक ये कैप्टन खड़ा है देयर नो चांस। सो वो अंदर ही गांव में दूसरे कोने में चले गए, और वहाँ से उन्होंने मुझे चैलेंज किया। पहली गलती थी मेरी, दैट वाज अ ट्रैप, दे वर ट्राइंग टू गेट मी इनटू किलिंग जोन। आई कुडंट सेंस, आई न्यू कि ये थोड़ा सा अलग है, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वो लास्ट मिनट तक अपने आप को रोके रखते हैं, छुपाए रखते हैं, और कई बार होता भी है, सफल भी हो जाते हैं कि हम ढूंढ के चले जाते हैं और वो कहीं छुपे रहते हैं, और बाद में पता चलता है कि यार वो ठीक से हमने ढूंढा नहीं, वहाँ पर रह गया वो जी। तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे, खुद अपने लोकेशन बता रहे थे, ये अलग था। लेकिन वो एक पहली गलती हुई। दूसरी हुई कि जब हम चल दिए उस तरफ, चल दिए तो 2 व्यक्ति हमारे पर चार्ज किया, उन्होंने 2 आतंकवादी चार्ज किए पूरा अल्लाह अकबर करते हुए। तो उसमें हम लोगों ने फटाफट पोजीशन ले ली, लेकिन मेरे 3 लड़कों को लग गई। 3 लड़कों को लग गई, तो मैं पोजीशन लेके अपने आड़ में था, लेकिन जब मैं लगी तो अगेन ये सेना की कहानी है, आप कहते हैं ना, मतलब भाईचारा वर्दी का क्या है। तो आई न्यू कि शायद नहीं बचेंगे, बट वो मेरी तरफ देख रहे थे, सो आई केम आउट। मैं बाहर आया, उनको उठाने लगा, हमने भी, सबने फायर किया था, तो वो दोनों भी गिर गए थे, आतंकवादी भी गिर गए थे। तो हमने उठाया, देखा, तो जब मैं उठा रहा था तो मेरे तीनों, मतलब पता था नहीं है, तब तक मैंने देखा खड़ा हो रहा है आतंकवादी,
उठने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ मेरे से फिर दूसरी भूल हुई। भावनाओं में फिल्मी नहीं होता है कि आप भावनाओं बह के लड़ते नहीं, यू कांट गेट इनटू एन इमोशन। तो दूसरी भूल ये हुई कि मैं थोड़ी देर के लिए भावनाओं में बह गया, इसलिए कि मुझे लगा कि इसकी वजह से मेरे आदमी गए, मेरे जवान गए। तो मैंने छोड़ा और मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसकी छाती पे पाँव रखा, अपने वेपन को सिंगल शॉट किया, एंड आई जस्ट फॉरगॉट थोड़ी देर के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या काम है। एंड कोल्ड ब्लडेड या जो भी कहें, एक इस आँख में, एक इस आँख में, एक नाक में, आई सिंपली पंपिंग बुलेट्स एक एक करके विद अ गैप। मेरे को आवाज़ आ रही चारों तरफ से जवानों की, साहब हो गया, मर गया, आप निकलो वहाँ से, हटो हटो, बट मैं बस भूल गया सब कुछ। दैट इज़ द मिस्टेक। अब तीसरा मिस्टेक फिर ये हुआ कि 3 आदमी थे, सिर्फ 2 बाहर से आए थे। वो तीसरा उसने सोचा होगा अगर वो 2 सफल हो जाए तो मैं छुपा रहूँगा, हाँ, तो तीसरा फिर पीछे से आ रहा था। अब उसने उन दोनों से सबक सीख लिया था कि मुझे आवाज़ नहीं करनी। तो वो दोनों तो चिल्लाते हुए आए थे, ये चुपचाप आ रहा था, पीछे से चुपचाप आ रहा था। एंड ही न्यू कि मैं बाहर आऊँगा तो मरना तो है ही है, बट इस कैप्टन को तो ख़त्म करूँ। सो ही वॉज कमिंग दबे पाँव टू कम एंड पॉइंट ब्लैंक मारेगा पीछे से। तो मैं जब मार रहा था उसको तो मुझे लगा कि पीछे कोई आ गया है, ऐसे लगा सिक्स सेंस। सो टर्न बैक करते वक्त एक और भूल की मैंने। एज आई टर्न बैक आई शुड हैव रेज्ड माय वेपन। मेरा वेपन ऐसे ही था। तो जब मैं घूमा उसके सामने तो उसका हथियार ऐसे था, मेरा हथियार ऐसे ही था। जिंदगी और मौत में इतना ही फर्क होता है। He pulled the trigger first and that's what it happened. So I made 3 mistakes, good enough mistake for to not be alive. How do you feel when you just recall these moments? I only feel Is there regret, guilt, ऐसा कुछ रहता है? they regret that I feel my mistake and those 3 lives that I lost. वो मेरी गलती थी। And was is that motivated you, or not motivated is not the right word, but ऐसा आपको पुश करा क्या आर्मी इन प्रीमेच्योरली आपने छोड़ा? प्रीमेच्योर पे मैं आऊँगा, बट वो 3 का मुझे आज भी अफसोस है कि मेरी वजह से उन्होंने 3 जवान खोए। बट हाँ, अपने लगने का कोई अफसोस नहीं है। अपने का तो मैंने कहा ना कि अब कभी कभी अफसोस होता है कि यार चले ही जाते तो ठीक था, नो शॉर्टर वे। But that's how it happens. आप लड़ने जाते हैं तो कुछ you lose some people, you lose You some lose some guys, people, you yes. come. हाँ, वो lose some people इसमें ज़्यादा इसलिए कि मैं इसके लिए अपने It आप could को have been दोषी मानता avoided, हूँ। हाँ. अपने आप को दोषी मानता हूँ। Very difficult to and I've seen a lot of deaths. I've seen एक स्टोरी है मेरे मित्र की है, मेजर पद्मपानी आचार्य की, कारगिल में। तो when he died, तो I had gone to see his dead body in the mortuary. I saw about 70 plus bodies that day, and I've seen a lot of death. To me is very normal. It's a very big truth, as you शुरू में आपने कहा था, बहुत बड़ा सत्य है ये। एंड मेरी तो दोस्ती है, मृत्यु से मेरी तगड़ी दोस्ती है। एंड आई नो दैट इवन व्हेन यमराज टोल्ड के ठीक है भाई जा ले जिंदगी एक बार और ले ले, वो पैक्ट है। यमराज ने बुलाऊंगा फिर से, मैंने कहा ठीक है, एंड होपफुली यू विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन। ही दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी व्हेन ही वेंट। आई एम ट्राइंग टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन दैट आई व्हेन ही मीट हिम अगेन, सो आँख में आँख मिला पाऊँ कि यार आई थिंक आई प्लेड माई इनिंग्स। When you go back to the pavilion, तो you should go back with pride कि यार I played my innings well. I hope so. जो मुझे दिया गया था। अभी last year I was suffering. I was sick and I was in terrible pain. I knew it's around. मुझे पता था कि death is around and it's telling me कि तू झेल जितना झेल सकता, नहीं होगा तो I'll rescue you. Don't worry. I got the power to alleviate all your pain, all your suffering. मैं खत्म कर दूंगा. Don't worry. बाकी तो जितना झेल सकता झेल ले. So it's a great friend. It's always around. It knows that बचा लेगा. And if you keep accepting death as a truth, then आपके रास्ते, जीवन के राह पे भटकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। And जैसे कहते हैं ना कि आपको दिन का उजाला समझना हो, तो you should have seen night, darkness of night. I'm not telling कि सबको जाना चाहिए, बट मुझ जैसे जड़ बुद्धि के लिए जरूरी है। I'm not telling कि जिसने जो मेरे अनुभव से नहीं गुजरा है उसको समझ में नहीं आएगा। They are very very learned and wise people, evolved people. Hats off to them. But मुझ जैसे जड़ बुद्धि के लिए it was important to face experience death to understand life.
just the way going through darkness makes you understand light better. For me, so after I've been through that, so now I'm able to understand life better, and hopefully I able to do things in the right manner. Great to know. So yeah, talking about your journey, why did you leave army? Was that regret as a leader of losing 3 lives? I wasn't a very wise man when I joined the army. Wise, but I was kind of an ignorant, मस्त मौला टाइप, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था ज़िंदगी में, जीवन में क्या सही क्या है, देश के मायने, ये सब नहीं पता था। आर्मी ने मुझे बहुत कुछ समझाया, सीखा मैं परिस्थितियों से, और उस समझ से मुझे से एक बात समझ में आई बाद में कि राष्ट्र की लड़ाई जो है वो भीतर ज़्यादा भयावह है। शत्रु जो है वो जो अब चाल चल रहा है वो यहाँ ज़्यादा चल रहा है, सीमाओं पे अपना है, उसका अपना महत्व है। तो मैंने कहा था जो मेरे को दायित्व दिया गया था मैंने अच्छा उस दायित्व का निर्वाह सही किया, गलत किया, बट दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ ओवर। बॉर्डर वाली लड़ाई, सीमाओं वाली लड़ाई, बंदूकों वाली लड़ाई मैं लड़ चुका था, एंड आई कुड ऑल्सो सी दैट रेस्ट ऑफ माई करियर इन आर्मी was all about now dealing with paper, pen and computers and presentations. Not that it is not important, but I felt I wasn't that very well qualified to contribute in that field. And then I saw this happening. कहीं कोई टुकड़े टुकड़े के नारे लगा रहा है, कहीं कुछ बात कर रहा है. It actually shattered me. जब इस देश के राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोई बात कर रहा था. And that was a trigger for me. एंड उसके बाद डिसाइड कि मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, बाहर जाके कैसे करूँगा, बट मुझे इस लड़ाई का हिस्सा होना था. यू कैन नॉट लेट इट बी गो, अपना रोल खेले बगैर नहीं जा सकता. तो दैट वाज द ट्रिगर फॉर मी. विचारों की लड़ाई इज अ बैटल ऑफ परसेप्शंस. दिस इज अ फार मोर इम्पॉर्टेंट बैटल, एंड दिस आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई टोल्ड यू कि मुझे आर्मी में समझ में आ गया. इवन इन आर्मी, इवन व्हेन आई वाज डीलिंग विद टेररिस्ट, I had understood there the importance of battle of perceptions. So there's a video of mine on YouTube. You can see that I'm talking with a terrorist. Right. Right. So even there I understood that it's a battle of perceptions. मैं समझने के प्रयास कर रहा था. And then I used to talk to people. I used to talk to youth there. And though I'll tell you one thing. When I went there in Kashmir second time, खबर आती थी कि मैं जितना इलाका मेरे कंट्रोल में था कि एक लड़का है वो आतंकवादी बन गया, मतलब ही जॉइन देयर रैंक्स. हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक आ जाता था. दैट सेट मी थिंकिंग यार व्हाट इज इट द थॉट दैट विच इज टेकिंग हिम देयर. वो क्या ऐसा बोल रहे हैं, क्या ऐसा समझा रहे हैं जो वो उधर जा रहा है. आई वॉन्टेड टू फाइट दैट थॉट. And that's what I told. Then I started speaking. I went to schools. So मेरा एक्चुअली में स्कूल से एसोसिएशन वहाँ शुरू हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से. सो मैं प्रिंसिपल को जाके बोला कि आई वांट टू टॉक टू द यूथ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई डिड. देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल. जलता था जहाँ भी लोग मिलते थे, बाजार में, चौक पे. आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू देम, एंड आफ्टर आई स्पोक व्हाट आई स्पोक, एंड आई ऑल्सो यूज्ड टू टेल दोस गाइज कि जैसे स्कूल में मैं लड़कों से बात करके और बोलता था अभी मैं जब जाऊंगा यहाँ से तो शाम को वो लोग आएंगे, आई मीन टेररिस्ट या उनके रिप्रेजेंटेटिव, वी कॉल देम ओवरग्राउंड वर्कर्स. सो दे हैव ओवरग्राउंड वर्कर्स हु आर डेली नॉर्मल लुकिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स. दे कुड बी डॉक्टर्स, दे कुड बी शॉपकीपर्स, दे कुड बी मौलवीज, दे कुड बी एनीवन. सो दीज आर द गाइज हु कीप coming and brainwashing these kids to encouraging them to join those ranks. So, or at times even terrorists, leaders, they would come in at night अंधेरे में and all. So I told them कि मैंने कहा मेरे जाने के बाद आपके पास वो लोग आएंगे, हो सकता है वो खुद आए अंधेरे में. और मैंने कहा कि जैसे जिस दिन मैंने बात करा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा अगले एक हफ्ते तक अगर मैं आपके मोहल्ले से निकल रहा हूँ, आपके दरवाजे पर मैं या मेरा जवान खटखटाता है, अंदर अगर बैठा है आतंकवादी आपसे बात कर रहा है, तो आप अंदर से आवाज़ देना कि वो मेरे साथ है और वो मेरी बात कर रहा है, मैं बात सुन रहा हूँ. मैंने कहा मैं वापस आ जाऊँ.
You see, I'm there to kill terrorists, primary aim. But I wanted to fight their battle of thoughts. मैंने कहा I'll come back. Please talk to him, and then I told them a set of questions. After you listen to him entirely, these are the 3 questions I wanted to ask him. And if you get a satisfactory answer to that, then come and tell me the next day. मैंने कहा बेटा बॉर्डर मैं तेरे को पार कराऊंगा. And quantify नहीं होता है कि but my biggest achievement in that entire period is not the amount of terrorists that I killed, because that is what is in record. That is what I was awarded for, gallantry award. That is the story that has been written. But my biggest achievement in that period is that after I started doing this, 1 महीने के बाद मेरे पूरे टेन्योर में एक लड़का नहीं ले जा पाया. So I understood the importance of battle of thoughts then. And it was further validated when the terrorist, वहाँ पर कश्मीर में क्या होता है कि जब भी कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है, अच्छा मीन्स खूब टेररिस्ट मारता है, तो धमकी आती है. एंड रूटीन है, नॉट दैट एनीबडी फील्स स्कैर्ड. दे न्यू कि इफ यू आर किलिंग तो धमकी आएगी. इन एनी वे, कभी पर्ची आती है, कभी कुछ आता है, या कभी. एंड मैं तो रेडियो सेट पे खूब बात करता था, देन दे यूज्ड टू टेल मी. बट मुझे धमकी अलग आती थी. मुझे ये कहते थे कि कैप्टन तेरे को जितने मारने मार ले, बात करना बंद कर. Then I knew that the words that come from my mouth are far more dangerous for them than the bullets that came from the barrel of my gun. Right. That's where I understood the battle of perception, the importance of this battle. सोच की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है. सोच के वर्चस्व की लड़ाई का महत्व मैं वहां समझ गया था. और उसी से प्रेरित होकर आपने जब सब प्रश्न पूछा क्यों सेना छोड़ी, वो लड़ाई अब यहाँ लड़नी. अब कितना सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, ईश्वर के हाथ. तो टॉकिंग अबाउट थॉट्स, अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें या फिर एक बच्चा टेररिज्म ज्वाइन करना चाह रहा है उसकी बात करें, तो एक सोच ये भी है ना कि उनका राइट है, उनका हक है, वो टेररिज्म इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके बेसिक राइट्स मीट नहीं होते हैं. उनको अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ता है, उनको अपने रिलीजन के लिए लड़ना पड़ता है, वो बिकॉज बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं. ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग, आप अगर हम उनकी बात करें तो उनके हिसाब से उनकी ह्यूमन राइट्स पूरी नहीं हो रही हैं. हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े नेशन बना रहे हैं, बड़ा बड़ा कल्चर हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, बट एक इंसान की बेसिक राइट्स पूरे नहीं हो रहे हैं. तो इस फॉर देम इंडिविजुअल राइट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द राइट ऑफ द नेशन, राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, right of the culture that has been here for millennials of years. How do you find this? Like, what is this battle about? Do we need it also? आप जो ये पूरा प्रश्न पूछ रही हैं, the entire question that you're asking, you're telling उनके राइट पूरे नहीं रहे, उनके प्राइड पूरे नहीं रहे, उनके अधिकार, उनके फ्रीडम, ये उनके है ही नहीं. या हमारे उनके हिसाब से उनके खुद के नहीं, उनके है ही नहीं जी. किसी और ने उनको बताया जी. काश ये उनके होते, ये उनके नहीं है. There are agencies which want the downfall of this country and this culture and this civilization. ये उन्होंने उन्हें सिखाया है. You can clearly make out कि कौन अपनी मर्जी से बोल रहा है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के, और कौन external influence which has got an ulterior motive, उसके influence में बोल रहा है. But this influence has become very strong. It's very Yes. entrenched. That's Feminism in a lot of capacity is very, very important. Yes, We yes. need women empowerment. But it has not taken a very different shape in breaking the families, in Yes, yes. diluting the importance of motherhood Yes. or breastfeeding, Yes, or yes. even giving a birth to a baby. Giving a Everybody birth wants to a to baby. Yes, outsource that We want to aspect outsource that. of like being a woman, right? I'll before that I'll continue with that previous question. आपने कहा ना उनके राइट्स, पहले तो मैंने कहा ये उनके हैं ही. और दूसरी बात, आप खुद सबको इस विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे इतिहास में हमारी जो संस्कृति थी पुरातन, जो मूल संस्कृति है, उसमें आप देखेंगे ये जो शब्द हैं अधिकार और कर्तव्य, पूरा संस्कृति, पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था, पूरा आचरण सिर्फ कर्तव्य पर निर्धारित है, अधिकार पर कहीं है ही नहीं. अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि आप एक सोसाइटी में रहती हैं, उस सोसाइटी के अंदर म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाला व्यक्ति रहता है जो सैनिटेशन के लिए जिम्मेदार है, एक पुलिस वाला रहता है, एक वाटर डिपार्टमेंट में काम करता है जो घर में पानी आता है उसके लिए है, एक
पुलिस वाला रहता है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बिजली वाला रहता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और उस सोसाइटी का हर तरीके से, एक दिन पानी नहीं आता, कभी बिजली नहीं आती, कभी सैनिटेशन खराब है, कभी चोरी चकारी होती है। अब इसको टैकल करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि जिस दिन बिजली नहीं आई सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और बोले ये हमारा अधिकार है और बिजली वाले के ऑफिस चले जाएं, धरना दें। जिस दिन पानी नहीं आया सारे इकट्ठे हो जाएं, वाटर इज अ राइट, धरना दें। हर व्यक्ति को अपने अधिकार का बोध है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि हर व्यक्ति कर्तव्य के बोध से प्रेरित है। हर व्यक्ति, बिजली वाला जाए और अपना कर्तव्य करे, पानी वाला जाए अपने ऑफिस में अपना कर्तव्य करे, पुलिस वाला जाए अपना लॉ एंड ऑर्डर का अपना कर्तव्य करे, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य करे। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन पर छोड़ता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कौन सा तरीका बेहतर है, कर्तव्य के बोध पर आधारित समाज या अधिकार के बोध पर आधारित समाज। अधिकार शब्द का प्रयोग हमारी संस्कृति में होता था जब वह मुझसे आपका बनता है, मुझसे आपका बनता है, यानी कि मान लीजिए कि बहू आती है घर में और नई विवाहता आती है तो उसके घर से कोई देता है उसे कुछ, तो बोलती पिताजी या माँ जी ये नहीं चाहिए, तो नहीं बेटा ये तेरा अधिकार है, मुझसे तेरा बनता है। तो मुझे अगर आपको देना है कुछ और तो मैं आपको कहूँगा कि ये आपका अधिकार है, मुझसे आप लीजिए। तो अधिकार शब्द का प्रयोग सिर्फ देने वाला करेगा, लेने वाला नहीं। अगर आप मुझसे कहती हैं कि आप मुझे दो, ये मेरा अधिकार है, तो वो प्रयोग गलत है। तो अधिकार शब्द हमारी संस्कृति में देने वाले के यूज के लिए बना है जी। लेने वाले, और दूसरा जो है वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो जो मेरा कर्तव्य आपके प्रति है वो मैं कहूँगा कि अधिकार है। आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करती हैं या कुछ करती हैं तो वो बोले बेटा रहने दो, नहीं बेटा, नहीं पिताजी ये आपका अधिकार है। तब आप करेंगे यूज। वो अधिकार जो उनको आप दे रही हैं वो आपका कर्तव्य है। तो ये सटल डिफरेंस है जी। So we need to get back onto this entire narrative, destroy that, and get back to make a society conscious of its duties rather than rights. The word of right is to be used for the person who is supposed to be giving, not the person who is supposed to be asking. जी। बस। और हर व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा तो अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जैसे उस सोसाइटी का मैंने उदाहरण दिया, अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है तो किसी के पास धरना देकर अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हम अधिकारों की बात करने की इतनी जोर से आवश्यकता पड़ रही है, इसका तात्पर्य यह है कि इसका मतलब कई लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। उस सोसाइटी में सब लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे थे, तभी तो कुछ लोगों को अधिकार मांगने की बात आई। तो बेहतर यही तरीका है हम कर्तव्य बोध पर आधारित समाज, परिवार में भी मांगते हैं ना सब लोग। परिवार में भी अधिकारों पे ही लड़ाई हो रही है। दो देवरानी जेठानी है तो अधिकारों में मेरा अधिकार ये है, तेरा अधिकार ये है, या साथ जो भी है, दो भाइयों में, दो बहनों में, तो अधिकारों में अगर हर परिवार में भी हर व्यक्ति कर्तव्य के बोध से प्रेरित हो, समाज में प्रेरित हो, राष्ट्र में प्रेरित हो, तो कितना बढ़िया समाज हो जाए, कितना बढ़िया परिवार हो जाए, कितना अच्छा राष्ट्र हो जाए। मैंने कहा ना विचारों की लड़ाई है राष्ट्र के में जमा रखा। तो उन्होंने क्या करा है कि हमारे देश में नैरेटिव एक फैलाने का प्रयास किया गया, मतभेद का, वर्सेस, हर चीज में वर्सेस, कैसे हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं। और इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी सभ्यता है, हजारों लाखों साल की है, तो फॉल्ट लाइंस भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, गलतियां भी हुई हैं जी। तो गलतियां भी हुई हैं तो they've taken advantage of that, right? And तो उसमें फिर वो क्या करते हैं कि वर्सेस करके लड़ाते हैं एक दूसरे को। तो उसमें ये उस वर्सेस, बीच में वर्सेस है, इधर एक शब्द है, इधर एक शब्द है, उसी में मैन एंड वुमेन आ गया, उसी में ये जाति वर्सेस ये जाति आ गई है, उसी में ये फेथ वर्सेस दिस फेथ आ गया है, उसी में साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन आ गया है। वो वर्सेस बीच में कांस्टेंट है जी। इधर के बदलते रहते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं नए नए शब्द, कैसे कैसे डाले जाएं। अमीर वर्सेस गरीब आ गया, फैक्ट्री में जाएंगे, कोई इंडस्ट्री में जाएंगे, अमीर वर्सेस गरीब, मालिक वर्सेस मजदूर आ गया, और ये भाषा वो भाषा। तो उसी में फेमिनिज्म की पूरी लड़ाई है। और मैं ये बताता हूँ कैसे गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्याय नहीं हुआ है, इतने बड़े कालखंड में होंगे,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आधारहीन है वो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर अन्याय नहीं किया है, चाहे वो जाति का हो। एक हुआ है, इतिहास में अन्याय हुआ है, पुरुषों ने महिला पर अन्याय किया है, वो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है ही नहीं, है, वो हुआ है और रहेगा। हम ये भी नहीं कह सकते आइडियलिस्ट, शायद वो सतयुग में नहीं जा सकते, हम कलयुग में है, वो रहेगा भी रहेगा। बट अब इसको आप इस तरह समझिए, हाउ डू यू टैकल दैट, ये कौन सा वास्तविक में जो हमें बता रहा है वो वास्तविक तरीके, वो हमारा हित चाहता है कि नहीं चाहता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको समझा रहा हूं। एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए आप, कि आप घर जाती हैं और आपके घर में 2 बच्चे हैं। आप घर में जाती हैं और देखती हैं कि दोनों कमरे से आवाज आती है कि लड़ रहे हैं दोनों। आप अंदर जाती हैं, देखती हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीट रहा है, राइट। अब तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसको एड्रेस करेंगी, वो चाहे प्यार से करें, चाहे डांटें, चाहे मारे, आई एम नॉट गेटिंग टू दैट। आप एड्रेस किसको करेंगी, जो मार खा रहा है वो या जो मार रहा है वो? आप किसको सबसे पहले बात करेंगी? जो मार रहा है। जो मार रहा है, राइट। यू डील विद द पर्सन हु इज डूइंग ऑप्रेसिंग द अदर, राइट। बिकॉज आप हो सकता है उन बच्चों की माँ है, बहन है, दीदी है, जो भी है, मामी है, चाची है, बिकॉज आप वेलविशर है। अब टेक द सेम एग्जाम्पल, वही दोनों बच्चे नीचे खेलने जाते हैं, मतलब नीचे मिलते हैं, और आपके पड़ोस में कोई है जो ईर्ष्या रखता है इस परिवार से, अहित चाहता है इस परिवार का। उसको पता चलता है इस घर में एक फॉल्ट लाइन है, ये दोनों बच्चों में तनातनी है, और ये एक मार रहा है, एक मार खा रहा है। वो पता क्या करेगा, वो एड्रेस करेगा जो मार खा रहा है। उसको बोलेगा, तेरे को ऐसे किया तेरे भाई ने, तू सुनना नहीं, ये चाकू ले ले, कल मारेगा तो घूम देना, चिंता न कर, मैं हूं, तेरा अधिकार है, ऐसे नहीं सुनना तुम। उसको भड़काएगा वो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, जो भी सुन रहे हैं, आपके साथ अन्याय हुआ होगा, मैं उसको तो बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं, बट जब भी कोई व्यक्ति जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको भड़काने का प्रयास करे, वो आप ही के साथ हो रहा है, लेकिन अगर आपको एड्रेस कर रहा है कोई, ना कि उसको जो अन्याय कर रहा है, तो वो आपका हितैषी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन। एक दूसरा, ये तो एक वैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, अब एक एक्चुअल देता हूं। जमीन, अमीर गरीब की, भूमिहीन और जमींदार लोग थे आज़ादी स्वतंत्रता के पश्चात। तो एक संत थे आचार्य विनोबा भावे। वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने एक चलाया था भूदान आंदोलन। वो जाके जमींदारों को समझाते थे। उस उदाहरण में क्या देखा, आप किसको एड्रेस कर रही थी, जो मार रहा है, राइट, जो ऑप्रेसर है जी। तो चूंकि आप हितैषी हैं, तो आचार्य विनोबा भावे चूंकि समाज का हित चाहते थे, तो वो जमींदारों को समझाते थे कि यार सारी जमीन तुम लेके बैठोगे, वो गरीब हैं, भूमिहीन है, यू मस्ट पार्ट विद समथिंग, एंड ही वाज गेटिंग सक्सेसफुल। भूदान आंदोलन चलाते थे। बट देन इस देश के अहित चाहने वाली फोर्सेस थी, उन्होंने कहा यार ऐसे तो प्रेम से सब कुछ सुलझ जाएगा, विल नॉट लेट दिस हैपन। सो दे हाईजैक दैट एंटायर मूवमेंट, दे डिरेल दैट एंटायर मूवमेंट। फिर उस भूमिहीन लोगों के पास गए, छीन के लो तुम अपना, हथियार लो, बंदूक लो, नक्सल बनो, ये करो, वो करो, छीन के लो इन अमीर ज़ादों से अपना अधिकार। सेम इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन एंड वुमेन। I'm not telling men have not done wrong. They have and they still do. दोनों भी होता है. Women also are doing at times. I'm not getting into that. But the point is, as a healthy, responsible society, we should have addressed men. अब क्या करेंगे उस आपके एग्जाम्पल में, आप उस बच्चे को पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं माना तो डांटेंगे, नहीं माना तो आप मारेंगे भी, बट डील तो उसी से करेंगे ना। तो पूरा एजुकेशन जो देना है वो मेन को देना है, अगर नहीं मानता है तो सजा देना है वो मेन को देना है। लाइन पे इसको लाना है जो गलत हो रहा है, गलत कर रहा है जी जी, उसको इसके खिलाफ भड़काना नहीं। और एक और होता है, समाज में क्या होता है, मीडिया का जमाना है,
हाइप करने का ज़माना है, मजबूरी है मीडिया की भी, उनको भी अखबार बेचना है, टीवी बेचना है, लोगों को उपन्यास बेचना है, लोगों को फिल्में बेचना है, तो फॉल्ट लाइन पे ही बिकती हैं दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। फिल्म में सब कुछ, फिल्म में, उपन्यास में, कहानी में सब कुछ प्रेम रहेगा तो शायद कोई देखेगा नहीं। आई डोंट नो, मे बी दैट्स देयर कंपल्शंस। वो उतना है भी नहीं समाज में गलत हो रहा है जितना दिखाते जी हैं। जी। मैं अनफॉर्चुनेटली, तो सौभाग्य से मैं गांव से जुड़ा हूं, तो मैं पिताजी के साथ बाहर एयरफोर्स में थे, तो मैं जो फिल्में देखता था, तो फिल्मों में तो देख के ऐसा लगता था कि हर दलित के साथ बलात्कारी हो रहा है। हाँ, अभी भी। फिल्मों को देखो तो लग रहा है हर दलित के साथ पिटी रहा है, कोई घोड़े पे आकर उसको ठोकर मार ही रहा है, हर दलित महिला बलात्कारी हो रहा है, हर पंडित जो है वो फ्रॉडी है। और मैं गांव में जाके देखता था तो मतलब हाँ, 10 जिलों में एक आधा सुनने आते थे, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। तो ये जो वर्सेस करने का है ना, वो बोलो ब्राह्मण ने वैसा है। मैं आई टेल यू वेरी एक्चुअल इंसिडेंट। पहली बार जब मुझे बहुत यंग था मैं, तब ये मेरे को बोध आया कि मैं गांव में था, तो एक किसी घर में पूजा थी, तो पंडित जी आए, धोती पहनी हुई, धोती फटी थी तो उसको सिलाई से तुरपाई की हुई थी उन्होंने, और साइकिल पे चेन गिर रहा था उनका, लेकिन आए वो। और मैं 20-22 साल का था, यंग था, और मेरे जैसे और युवा थे। न जाने क्यों उस पंडित ब्राह्मण को हम हेय दृष्टि से देख रहे थे, ताने भी मार रहे थे। आ गए पंडित जी, मैं बिहार का रहने वाला, आ गए पंडित जी, यहाँ कितना दक्षिणा ले जाए, पंडित जी पंडोल डोल पैसा मांगे गोल गोल। एंड ये सब मैं भी उस भीड़ में शामिल था। एंड वो पंडित जी चुपचाप, शायद उनके साथ रोज की यही स्थिति रही होगी, और धोती फटी हुई, कुर्ता भी एक दो जगह से था, धागे निकल रहे थे, और गए अपना पूजा पाठ कराया। बट मेरा क्या है कि शायद सबको होना चाहिए, कभी कभार महीने 2 महीने 3 महीने में आई गेट इन टू इंट्रोस्पेक्शन मोड। एट टाइम्स देयर आर लोनली मोमेंट एंड ऑल, एंड आई स्टार्ट एनालाइजिंग। तो मुझे वो घटना फिर रिवाइंड किया मैंने कुछ महीनों बाद, एंड आई डिड नॉट गेट एन आंसर एज टू व्हाई आई डिड दैट। मैंने पूरा सोचा, ना मेरे पिताजी ने सिखाया, ना किसी ने बताया मुझे मैंने ये क्यों किया। आई डिड नॉट गेट एन आंसर टू दैट। बहुत सोचा मैंने, बट उसका आंसर मुझे बाद में, एक दिन मैं एक फिल्म देख रहा था तो मिल गया। तो मैंने कहा यार, बचपन से मुझे हर फिल्म में यही बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ढोंगी है, धूर्त है, ठगी है, वो फिल्म की नायिका की तरफ वो वासना भरी दृष्टि से देखता है हर चोर की टीका है ना। हाँ, टीका है। मैंने कहा यार, ये तो मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है बचपन से। जी। वो तो मैं गांव से जुड़ा हूं, तो ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछ पाया। जो बच्चा जो कभी गांव गया नहीं है, उसको तो फिर यही है। और मैंने आज तक गांव में किसी भी ब्राह्मण को नहीं देखा जो सिर्फ पुरोहितगिरी कर रहा है। और अमीरों की नहीं, गांव की बात कर रहा हूं मैं, शहर में होंगे मुझे नहीं पता, और वो धनाढ़ है। अगर कोई व्यापार और राजनीति में चला गया, बिजनेस में चला गया, नौकरी में चला गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पुरोहितगिरी कर रहा है, उस सबकी आर्थिक स्थिति ये नहीं कहूँगा भूगोल, लेकिन कोई ऐसी अच्छी नहीं है। तो दैट इज व्हाट, ये वर्सेस की लड़ाई का जो फॉल्ट लाइन है, और फिल्मों में दिखाया तो हर ब्राह्मण दलित को पीट ही रहा है। तो ये फॉल्ट लाइन को देख के लोग कर रहे हैं, तो वो भड़का रहे हैं। तो वो जो खासकर जिसका शोषण जो है कमजोर तथाकथित रूप से, उसको भड़का भड़का के और ये लड़ाया जा रहा है। तो ये बीच में वर्सेस कॉमन है, बाकी ये दोनों तरफ रहेगा। और दिल कीप डिस्कवरिंग न्यू। वो हर ऑर्गेनाइजेशन में भी है। ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाएंगे तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जरूर कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी रही होगी जिसके साथ किसी न किसी साथ अन्याय हुआ होगा। मतलब मैन मेड पॉलिसीज है ना, देयर विल ऑलवेज बी फ्लॉज इन दैट। राइट, यू कैन नॉट हैव अ परफेक्ट थिंग। तो ऑब्वियसली इट विल, एंड बस उसी को पकड़ के वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में भी भेद करेंगे। यूनिवर्सिटीज में हैं, नॉट एवरी यूनिवर्सिटी इज एज हार्मोनियस एज रिशुड, बट वहाँ पर भी है प्रोफेसर बस स्टूडेंट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो दैट्स द रीज़न, एंड दैट्स द थिंग, द वुमेन शुड अंडरस्टैंड दैट, एंड दे हैव अ वेरी डेफिनेट रोल टू प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। सेम जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नियति है जो आपको दिया है ईश्वर ने, उस नियति को समझिए, पहचानिए। देयर इज नथिंग अबाउट, आई ऑल्सो डोंट बिलीव दिस इक्वालिटी थिंग। जैसे मैंने कहा ना, राम है, एक वानर है, बराबरी क्यों करनी? तो मेन वेमेन इक्वल, इट्स नॉट दैट।
और करनी भी है तुलना तो women is here and men are here. So if you want to be equal, you'll have to climb down quite a huge distance to come equal to men. क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अब तक गलत काम हुए हैं इतिहास किसी भी कालखंड में ले लीजिए, अधिकांशतः तो आदमी ही करता है ना। चोर हमेशा ज़्यादातर आदमी हुए हैं, डाकू हमेशा आदमी हुए हैं, बलात्कारी आदमी हुए हैं, ठगी आदमी करते हैं। Wars, all of the most of the wars that have been fought are because there have been always been Hitlers and Aurangzebs and around. So I think women are here to balance that out. And I also sell one thing to all the women of the world, at least भारतीय नारी को कहूँगा मैं, बाकियों की बात मैं नहीं जानता, कि आप जो हैं you are the custodians of the conscience of the society and the family. Always. And इसको one of the reason they have attacked that feminism is because नारी जो थी वो हमारे समाज और परिवार की स्तंभ होती थी, आज भी है, बट उन्होंने देखा कि मैंने कहा अल्टीमेट मकसद तो है इनको कमजोर करने का, पूरी सोसाइटी को। उन्होंने कहा पिलर तो ये है, इसको भ्रमित कर दो, इसको कमजोर कर दो, इसमें वो सारे मोहमाया ज्यादा डाल दो। तो वही नारी थी इसी परिवार में, इसी देश में, इसी समाज में, जो जिसको कहते हैं कि डेली के खर्चे से बचा के पैसे रखती थी, जो घर के हेड को बोलती थी क्या आवश्यकता है इसकी। वो सोचते अच्छे बुरे समय के लिए मैं पैसे बचा लूं, और जब बुरा वक्त आता था तो उसकी गठरी से पैसे निकलते थे। तो वो यही वो नारी थी जो पहले बोलती थी क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, क्यों कर रहे हो जी, चल जाएगा ना काम, क्या जरूरत है, क्यों उड़ा रहे हो, बचा के रखो बुरे दिनों के लिए। हमारे देश के परिवार की नारी कहती थी। और आज वो देखता हूँ, जब कहीं कहीं देखता हूँ किसी किसी को वो प्रेशर में है नारी की तरफ से कि और बड़ा फ्लैट, और बड़ी गाड़ी, और ज़्यादा कपड़े, और ज़्यादा गहने, तो दैट इज़ व्हाट इज गॉट रॉन्ग, वो है। और कहीं मैं था कि मतलब सबसे बड़ी गुरु नारी होती है। तो मैंने कहा कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्शियंस जो है, कभी कभी पुरुष जैसे पुरुष बाहर जाता था तो दुनिया में देखता था, तो वो देखता था, नारी जैसे घर में रहती थी, पुरुष जाता था तो वो देखता था बाहर उसका बड़ा हवेली है, उसकी बड़ी गाड़ी है, उसके पास ज़्यादा वो है, तो वो शायद कभी कभी बहकने लग जाता था कि कुछ भी करके आई वांट टू बी दैट। बट व्हेन ही केम बैक इट इज द वुमन व्हिच टोल्ड हिम कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज डोंट थिंक ऑन दोस लाइन्स, मत करो, काफ़ी है हमारे पास। So that's why I say the custodians of the conscience. I'll modern example दूंगा मैं आपको एक। आर्मी में जब women आए, तो by nature I'm not telling good or bad, but yeah आर्मी में we use all kind of languages, जो भी है काम करें, ठीक है, वो एक है good, I'm not getting to that topic. When we are all men and soldiers, so free flowing शब्दावली का प्रयोग होता है जब क्रोध आता है या डांटना होता है जी। बट वो सडनली जब देखे कि उसी में हमारे एक वुमेन ऑफिसर आ गई है, तो जैसे यार नो देयर इज अ वुमेन, यू कांट यूज दैट वर्ड। यूएस आर्मी में नहीं होता ऐसा, ऐसे डोमेस्टिकेट करते हैं वुमेन, बोलते हैं ना मेन को। तो यूएस आर्मी में नहीं होता ऐसा जी, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में होता है ऐसा। तो वी स्टार्टेड मेंडिंग आवर लैंग्वेज, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली। आई ऑलवेज बिलीव, जैसे कहीं जा रहे हैं सरकारी महकमे में भी, किसी काउंटर पे गए और वहां पर नारी दिख गई ना, तो एक आई काइंड ऑफ टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यहां पर रिश्वत नहीं चलेगी, संभावना नहीं है। आदमी होता है तो फिर सोचना पड़ता है, देखते हैं यार अगर मानेगा नहीं मानेगा, शायद हाँ ना, यहां पर ग्रांटेड है, नारी बैठी है तो बाकी चीजें हो सकता है वो काम ठीक से ना करे, चक्कर लगा, वो सब ठीक है, बट इस बात का थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि रिश्वत तो यहाँ नहीं होगी जी, जी। तो इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं खबरों में सुनता हूँ कि कहीं जो फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड के गैंग में एक नारी थी। मुझे बड़ी यार नो, डोंट डू दिस प्लीज, नारी नहीं यार, डोंट डू दिस, आप मत करो ये काम जी। बंदे ठीक है, फ्रॉड धोखेबाज ये सब ठीक है, इट्स नॉर्मल, वी आर यूज्ड टू लिसनिंग टू दैट, बट ऐसे नहीं करो। सर आपने पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया कि बिकॉज आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आपका थॉट समझना आसान है, बहुत जरूरी। इज इट ऑल्सो अ रीजन दैट लॉट ऑफ पीपल हु जॉइन डिफेंस फोर्सेस एंड स्पेशली आर्मी आर फ्रॉम विलेजेस और आर फ्रॉम वेरी लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड,
We don't see people from Mumbai, Delhi, metropolitan cities aiming to join, defense forces. What are your views on that? इट्स एक्चुअली वेरी गुड. वी आर ब्लेस्ड. हमारे देश में वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ पर गांव हैं और वो गांव से ही हमारे मेजॉरिटी फोर्सेस आते हैं. एंड दैट्स वेरी गुड. दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ आर आर्मी. उसमें आई नॉट से आई डोंट what I'm about to make a statement now will not go very well with the people in the city. They may not like me. Not that ऐसा नहीं है. There are exceptions everywhere. I've seen wonderful people from cities as well. It's all about values. But गांव में ज़्यादा values रहते हैं. मोह माया में थोड़ा कम पड़ते हैं लोग. हालांकि वहाँ भी अब ये with the mobile thing and everything going, so उधर भी थोड़ा सा इफेक्ट होना शुरू हुआ है अभी. बट अदरवाइज ट्रेडिशनली वहाँ नहीं है. गांव में एक ट्रेडिशन है ऑफ प्राइड. गांव में एक ट्रेडिशन है ऑफ समाज संगठित है. तो समाज संगठित में होता क्या है कि आपको हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि मेरा परिवार और मेरा समाज क्या कहेगा. मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ. मैं अभी मैं मुंबई में रहता हूँ. कोई अधिकांश लोग किसी को नहीं जानते. एंड मैं जब ट्रेनिंग में गया था तो it was very tough, and I was not the best of the physically. I wasn't the like top में नहीं था मैं. तो अगर 10 लड़के दौड़ रहे थे तो probably I would be 5th, 6th somewhere or in the lower half. I was never in the top 3 वगैरह में नहीं था. So always found it that way. And at times I saw शुरू के हर ट्रेनिंग के बैच में क्या होता है, शुरू के 10-15 दिन में there are people who give up, who break and they say कि हमसे नहीं होगा. And I saw people who were running, used to be ahead of me, giving up. मैंने कहा यार जब ये नहीं हो रहा है तो मेरे से कैसे होगा. But the difference lied in because I was connected to my village. You could not have gone back into that village. आप जा ही नहीं सकते हो. You cannot show your face into that village. You cannot step in. उस समाज को, परिवार को आप शक्ल, मतलब ऐसा धब्बा लग जाएगा कि मतलब आप इतनी ग्लानी में रहोगे कि आप छोड़ दोगे वो जगह. एंड द सेम वे इफ आई वाज लिविंग इन अ से सिटी एट दैट टाइम, मैंने कभी गांव में नहीं, सोसाइटी में छोड़ के आ जाए कौन पूछता है. दैट कीप्स यू गोइंग नॉट ओनली ट्रेनिंग बट राइट थ्रू आउट योर ड्यूटी. कि समाज में, गांव में जाके शक्ल दिखानी है. ये धब्बा लेके आप जा ही नहीं सकते कि आप लड़ाई के मैदान में ये कर गए वो कर गए. और दूसरा एक है कि डिफिकल्ट लाइफ जीने की आदत गांव में होती है. I've seen, again, not everyone, so please don't get me wrong, the city guys. But there could be a situation, you are from a city, especially officers की बात कर रहा हूँ मैं, men की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. You could be very good, physically damn good, you could be running on the races, आप जिम में जा रहे हैं, strength भी है, good in academics, excelling everywhere, and you get into army. आप फिर एक लड़ाई लगी या एक्सरसाइज होती है हमारी, तो यू मूव इनटू अ बैटल सिचुएशन वेयर यू स्टार्ट ऑन द रोड फॉर डेज, लिविंग टेंट में रह रहे हैं और खाना नहीं पक रहा है, लाइक सो 3 दिन तक वही पूड़ी खा रहे हैं. एंड फॉर मॉर्निंग एब्ल्यूशंस you just got to go and dig a pit and do and cover it up and come back. In a normal scenario they were excelling. फिजिकली भी स्ट्रांग है, सब कुछ कर रहा है, अंग्रेजी बढ़िया, एवरीथिंग इंटेलिजेंट भी है. ही इज लाइक गोइंग. मोमेंट टू पुट हिम इनटू दैट सिनेरियो, नॉन कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं, ही स्टार्टेड ब्रेकिंग. 3 दिन 4 दिन खत्म. यार ये कब होगा. ही स्टार्टेड लूजिंग हिज कूल, पेशेंस, एंड बैटल इज ऑल अबाउट दैट. यू कुड बी रिक्वायर्ड टू बी स्टे इन अ ट्रेंच फॉर डेज, नाइट्स. तो देन आई न्यू कि यार ये गलत है. That is the reason वो गाँव वाला is important, and that's the, I've seen it myself. I was in Baramulla once, and वहाँ पर उस समय एक UN observers group था. So UN observer group था, and they used to come to us for some requirement, and we used to go and they used to come. Normal, officially we were not supposed to, but personal relation थे. And उस time army wasn't very well equipped when I went into the army, so clothing वगैरह सब कुछ था, तो they could spot that हमारा कभी जूते फटे हुए हैं जवानों के, यहाँ पर स्नो बूट हैं, बर्फ घुस रही है, कोट फट गया है, तरपाई लगा रखी है, बंदा चल रहा है.
ऑपरेशन हो रहा है तो जल्दी फौज, वो कहता था वेस्टर्न ऑफिसर कि यार व्हाट ग्रेट मैन यू गॉट, और चला गया, वो पूरी ले ली और चल 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 चलो यार, चुको 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 जल्दी जल्दी, जो भी रेजिमेंट है, जो भी जवान है, चल चल कोई बात नहीं, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, चला जा रहा, पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। एंड ही सेज कि यार हमारे यहाँ तो 3 बार हॉट मील नहीं मिला, तो मतलब द गाय डजंट फाइट एट ऑल। एंड वो इक्विपमेंट में थोड़ी सी भी ही जस्ट थ्रोज, आई वांट न्यू। हाँ यार तुम्हारा मतलब इट्स सो, इनफैक्ट ही यूज्ड टू टेल अस कि तुम्हारा तो कोई चैलेंज ही नहीं है लीडरशिप का। मतलब बंदे तो ऐसे ही लड़ने को तैयार है, हर स्थिति में खुश है, जो दे दो हाथ में, गंदा फंदा पूरी सब्जी पड़ी और 2 खाए, चलते चलते दुश्मन रखना है सामने। लड़ रहा खुश रहा, मतलब what men you got, that's the strength, that is the importance of, you know, we're fortunate, and that's what I'm telling you, that the Chinese army, you know, वो हमसे लड़ाई की बात की छोड़ो, इसी में हार जाएंगे। जस्ट वो आप -30-35 वाले टेम्परेचर पे सामने उनका पोस्ट लगा दो, हमारा पोस्ट लगा दो, एंड वो तो उसी में ही पूरा एयर कंडीशन बनाते हैं वो लोग, तब थोड़ा बहुत टिक पाते हैं वो। हमारे जैसे में तो 4 दिन में उखाड़ के चले जाएंगे तंबू, सर्वाइव ही कर जाए हमारे इक्वल कंडीशंस में ना, दे कांट सर्वाइव। लड़ेंगे की बात ही छोड़ो, दे जस्ट कांट सर्वाइव। ऐसा क्यों है? Is there, why is there so much resilience? Because we come from that rural background, village background. तो वही मोटिवेट कर रहा है, तो That आप आए motivate हैं, करता तो है ना, आपके दोस्त they मोटिवेट lived हो in रहे those हैं। fields, खेतों में काम किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। पर ज्वाइन करने के लिए भी आप आए, तो हाँ, आपने अपने दोस्तों को मोटिवेट वो करा। गांव में वो मान सम्मान रहता है ना, सेना का जवान का मान सम्मान रहता है। मैं ये करके आया, वो करके आया हूँ। मैं जब था, लड़ा था, तो मेरे जब लग गई थी, मैं जब वापस आया गांव में, तो आई वॉज ए प्राइड फॉर माई एंटायर विलेज। मतलब वो तो आई वॉज काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट भी कभी कभी होती थी मुझे, कि वो गांव है तो, और उस जमाने की बात है, थोड़ी रेवलरी रहती है बगल वाले गांव से, इससे उससे, ट्राइंग टू शो डाउन ईच अदर एंड ऑल। वो मेरे को लेके, मेरे चचेरे भाई या कोई गांव के लोग जो युवा लेके जाएंगे और मेरे को शो परेड कराते थे। ये देख हमारे गांव का लड़का है, इतने गोली खाई इसने, ये वो, इसने इतने मार दिए। मैं बोलता, अरे भैया थोड़े मारे मैंने। बोला तू चुप रहे यार, शो ऑफ, हमारे गांव का बहादुर लड़का है, दैट हमारे परिवार का लड़का है, वो गांव में है। शहरों में डजंट मैटर बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, क्या नहीं किया, फेल हुआ, पास हुआ, डजंट मैटर। तो वो, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम विलेज, क्लोज नेट फैमिली एंड क्लोज नेट सोसाइटी। सो वो, दैट इज द रीजन विलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट गांव के। एंड मोस्ट ऑफ, उसमें क्या, रिश्तेदारों में भी मोस्ट ऑफ हमारा रेजिमेंटल सिस्टम है, उस गांव के कई सिपाही होते हैं, तो वो खबरें भी आती रहती हैं एक दूसरे की। तो एवरीबडी इज प्राउड, मामा चाचा ताया किया, लड़ाई लड़ा, ये हुआ, वीर गति को भी प्राप्त हो गया, तो देन एवरीबडी इज प्राउड ऑफ दैट। मतलब मेरा जब करके आया तो आई कुडंट बिलीव द एटमॉस्फेयर व्हिच वाज देयर इन द ग्राउंड। आई फेल्ट द रिवॉर्ड दैट आई कुड सी द ग्लीम इन द आईज ऑफ माय पीपल इन द विलेज, दैट इज फार बिगर रिवॉर्ड देन एनी इन्वेस्टर सेरेमनी दैट कैन हैव इन राष्ट्रपति भवन और द मीडिया। कितने कैमरे लगा लो, दैट ऑनर दैट आई फेल्ट ऑफ बीइंग इन दैट विलेज, जो सम्मान था, कोई सेरेमनी नहीं हुई, बट दैट वाज फार मोर वैल्यूएबल टू मी। दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग, दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कमिंग फ्रॉम अ विलेज एंड डूइंग दैट। जी, सो डू यू थिंक अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने अभी भी लॉन्च करी है, विल इट चेंज दैट, विल इट मोटिवेट मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू जॉइन? नहीं, द फीलिंग रिमेन्स द सेम, आर्मी में जाना है। अब बाकी इट इज ऑल अबाउट दैट इक्वेशन, कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, बट अगेन आई थिंक इट इज बीइंग सिंपली पॉलिटिसाइज्ड। द रेशियो रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट इट इज मोर पीपल हु कैन गो इनटू द आर्मी। फॉर एग्जांपल, सिंपल मैं बताऊं, अगर आर्मी में एक जगह पर 100 की वैकेंसी है, तो पहले 100 भर्ती होती थी। आई डोंट नो, पहले बोल रहे थे 25% लेंगे, आई थिंक नाउ दे मेड इट 50%, वॉट एवर इट इज। तो अगर 25% लेते, 100 की जगह 400 भर्ती करते। 100 पहले भी रहने थे परमानेंट, 100 अभी भी परमानेंट रहेंगे। 400 भर्ती करके 300 वापस आते। अब शायद 50% है तो 200 भर्ती करेंगे, 100 वापस आएंगे। तो कहीं वैकेंसी कम नहीं हुई है। हाँ जी, वो 100 तो रहेंगे ही रहेंगे। Another 100 people will have the pride of having served in the army, and there's no better education than being in the army. राइट। आप 18, 19, 20 साल में लेके 4 साल 25 साल में बाहर आ जाएगा।
अगर बंदा हम क्या करते हैं हमेशा वो क्रीम के को लेकर डिफाइन करते हैं सक्सेस एंड ऑल. सम पीपल यस सम स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल एंड ऑल, बट मोस्ट जो होते हैं वो 21 से 25 साल में कर क्या रहे. हर बंदा तो आईएएस क्रैक नहीं कर रहा ना, हर बंदा आईआईटी क्रैक नहीं कर रहा. एवरीबडी इज नॉट एबल टू रीच दिस टिश्यू यूनिवर्सिटी. तो बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो दीज आर द टाइम दे आर गोइंग ऑन टू एट टाइम्स या तो वेस्टिंग द टाइम इन दैट because the attractions and distractions are maximum at that period of time. Either they're wasting their time or getting into wrong paths. आर्मी में जाके उस 4 साल में वो बंदा बन के निकल गया चला आता है. He comes out as a fine gentleman. No, in whichever field he goes, you can't find a better suited man than that person who's been in army for the 5 years. So it's actually a very good thing for the army. That thing कि कम ले रहे हैं वो भी गलत है, as I told you. And these well-trained people, disciplined people with some values instilled in them, coming back into the society and injecting the same values in different streams of various other organizations in this country is actually very That will good. be helpful. So, do you think we should have compulsory army training for 2 years after class 12, just like Israel, Singapore? Logistically, it may not be possible because for we are too us, huge a yeah. country, But but otherwise it would always be good. If we can afford it, logistically, financially, then it is a should good. do it. But that part I don't know. I'm not an expert on that. But yeah, it would have been good. And there's no better. अभी भी मैं बता रहा हूँ कि for all this corporate people and everybody, they still they haven't got used to how to take the best of these people. So there's a lot of talk about people coming and trying to adjust in civil, but I think the civil should थोड़ा सा अपने आप को tweak itself to adjust to their values. Right. I think it should also become part of the education system. Education system. Graduation में आपका 11th 12th में Yes, yes. army training के नाम से we can do multiple. Army training is one part. Even if you're not, there's another topic I do not know. To be able to fight, it should be an intrinsic part of the training. Education. I don't know legally, technically. I'm not getting into that. But if you go back to the ancient system of education, तो for example we take दशरथ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जब भेजा था ऋषि के पास, तो महाराज दशरथ के पास ऐसे कोई शत्रु नहीं थे, किसी पड़ोसी राज्य से कोई शत्रुता नहीं थी. He wasn't seeing any enemy. But then still उन चारों को शस्त्र विद्या तो सिखाई गई थी ना. तो हर ऋषि के पास जब जाते थे तो शस्त्र विद्या का पार्ट ऑफ दैट. आपका पड़ेगा खतरा नहीं पड़ेगा वो बात की बात है, शत्रु है नहीं है बात की बात है. इट इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग दैट यू शुड लर्न हाउ टू फाइट. Right. सो वो आर्मी में जाके करें या यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में हम शुरू करें, आई डो नॉट नो वेयर इट्स पॉसिबल और नॉट, बट टू बी एबल टू फाइट इज अ वेरी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. Right. Very basic requirement. So, sir, we've talked about your army life, we've talked about your value system, about government schemes. So, let's talk about your family. So, जो आपका ये पूरा, you've faced death, you've talked about your village also. But what about your parents, your daughters? You have 2 daughters, a wife. Like, what has been their role in your entire journey of being in the army, and then just voluntarily leaving it and coming into civilian life and fighting another battle of thoughts. Another battle of thoughts. It's been a mixed bag. Yeah. My biggest, as I grew till such time I got married, and even marriage के काफी दिन तक, my biggest influence has been my father. One of the reasons again वो village वाला background आता है. My father was a very tough and a brave man. People know me for my bravery, but he was a class apart. So he always felt, because he was in Air Force, so Air Force में तो ठीक था, camps में I was fine. But the moment we went back to village, पहले तो छुट्टी मतलब गाँव और तो कुछ होता नहीं था. तो moment we stepped down foot into the village, he wanted me to be as tough, as rigid, and as brave as every boy of the village. And those days, no electricity, nothing. Law and order भी पहले था, चोरी हो रही, डकैती हो रही है, normal खबर थी, ये सब होता रहता. What years were these? Like, जो बता रहे हो. 70s 80s की बात कर रहा हूँ, 70s में. तो वो he wanted to be as good as them. That is the, so he was pushing very hard.
दैट मुझे तेरे उनके जैसे चाहिए. दो माई अंकल्स यूज्ड टू से कि नहीं बाहर से आया है, गिव हिम सम टाइम. बट नहीं, वो जितना बड़ा बोझा उठा रहा है ये भी उठाएगा, रात में अगर वो जा रहा है बिना डरे तो ये भी जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. That expectation always walked at the back of my mind, and somehow I always felt that I'm not able to live up to that. Even though when I became an officer and all those things, my entire Gillette ad was the trigger for the Gillette ad was that, because it is, and then when he came into the ICU, when I got shot and he came to see me. So the moment he landed at the airport, he was received by my men who used to operate with me. So they must have told him stories. साहब तो बड़ा डरता नहीं है, ये है वो है. Then he met my CO. मतलब by the time he stepped into the ICU, he had met my men, my CO, my senior officers, my doctor as well. जो मुझे समझ में नहीं आया था तब, but my doctor also used to keep telling me on whenever he visited कि you are alive because you're brave. तो मुझे समझ में नहीं आता तब कि इसमें कौन सी bravery है, but ठीक है, later I understood what he meant. So everybody had told me, so his perception that, you know, and that's what when he came into the ICU, his first words were कि बेटा तो brave का बन गया. So I could finally see कि यार अब he is accepted कि यार he is good. That was my first influence. My wife is a simple housewife, and she took care of all the domestic part of it. I was slightly out, मैं बाहर सोचना देश दुनिया ये सब में ज़्यादा I could do that because she took care of the growing of my children, my two daughters. So they were very, I got injured in 2000. So then I think one of my daughters was 1 year and another was 4 years. Oh. So most of their life they've seen me with this scar and the suffix to my name, that is a Gallantry Award of Sena Medal. So they were always proud of that fact, that, you know, even whenever somebody asked me my name, and if I just ended it at Lieutenant Colonel Manoj Kumar, whatever, Captain Sinha, Manoj Kumar Sinha, they would immediately complete it. नहीं आप पूरा बताओ. Captain Manoj Kumar Sinha, Sena Medal. ये कौन बताएगा? So they were always they are proud of that fact, and whatever I speak to the world, ये सारा ट्रायल जो है ना, जो मैं आजकल बोलता हूँ, ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन मैंने अपने डॉटर्स के साथ किया. So I used to tell them whatever I experienced outside. So hopefully they're doing, one of them has got married, another will get married. Hopefully they will make a good wife, good mother and everything. And because that part, my wife has always been supportive of this. She never comes out. She never expresses her. She never wants to have that intention of taking part of my glory, but yeah, she has been that part of me. But yeah, she has questioned me. Very piercing means valid questions she has always asked me. And whenever she had a difference of opinion, she's done that. And that has made me think more and come out with that. She's not let me go unchecked. कि आप जो कर रहे हो ठीक है. And when I took that decision to leave army, again, she was like concerned mother. Yeah. And she wasn't, ये क्या है decision, like, why are you wanting to leave? And the logic of, तो वो फिर ठीक है, but then I left. When I left army, I had 2 daughters, teach them, educate them, get married. We don't have a house, so I still live in a rented house. But I had taken a decision to fight this battle, so I took that. And in the hindsight of but now they are proud of whatever I do, and they have that in me. They know that he will do something bigger. वो है उनको, and अपनी अपनी जिंदगी से दोनों चले जाएं. And वो होता है ना आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम जब आता है, तो वानप्रस्थ आश्रम में you're supposed to be dedicating yourself to the society. Yeah. So I want to get into that. I'm already into that mode, but once another daughter gets married, then I'm fully for that. And my wife is going to be with me, and that is what it has been so far. Great. There's always been a bundle of joy with both my daughters to bring them up. लेक्चर बहुत दिया मैंने उन्हें. I'm sure. We've heard army fathers are very strict, very disciplined. It's a very different to grow yourself in a army family. एक stories अलग होती हैं उनके, बहुत ही 6 बजे खाना खाना था, 6 बजे खाना खाना था, इसका भी story सुना है.
So उतना मैं शायद डॉटर्स थी ना, हाँ तो थोड़ा सा मैं सॉफ्ट हो गया था. I didn't know. Actually speaking, I'll tell you, I do not know. But when I only had daughters, so it's kind of lost कि यार इसमें करना क्या है? Because I knew how my father dealt with me. तो had I had son तो मुझे कुछ नहीं करना था, वो फोटोकॉपी कर देना था. Got to be very strict and this and मतलब ठुकाई पुटाई की जरूरत है तो करो. जी. बट वंस आई हैड डॉटर्स मैंने कहा यार ये तो फॉर्मूला तो चलेगा नहीं. यहाँ तो इवन इफ दे मेड ए मिस्टेक और इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो थोड़ा सा यू लेट देम गेट अवे विद दोस थिंग्स. आई डोंट नो व्हेदर राइट और रॉन्ग, बट वो था कि बेटी है तो कैसे यू कैन बी वेरी रूथलेस एंड the ability to say no. I don't know if I would have had a son, probably I would have been very upfront and told no. इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटी को ना करने में. कोई बोले डिमांड करे तो नहीं यार, यू गॉट टू से नहीं यार ठीक है ले. वो आई डोंट नो स्पॉइल किया या पैम्पर किया या दैट इज फॉर देम टू जज. बट दैट इज हाउ इट हैज बीन एंड आई ओनली होप दे कम आउट. आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय डॉटर्स वन थिंग, whatever is your dreams and aspirations in career, education, I'll support you fully. Whatever, whenever you want to study, wherever you want to study, I'll do that. जो भी करियर में अभी भी I still help them, whatever I can. Those things, job लगनी है, कोई अच्छा है, if I मतलब whatever I can do, I'm doing it even now, and I'll continue to do that to fulfill their dreams. But I've told them that if you're asking me for my dreams, just come out as a good human being, good wife, good mother, and good daughter-in-law, good sister-in-law, and whatever relations that you have all around. चाहे आप कल चाची बनो या बुआ बनो या जो भी बनो, वो आप अच्छे बनो. And if I know that you're playing those roles well, I would have my dreams fulfilled from you. बाकी आपके सपनों के लिए जो करना है करो. And I think I've done that, and I'll continue to do that, even beyond their expectations. I'll try and do that. But मेरे सपने यही है पहले, और देश की हर बेटी से मेरी यही उम्मीद है पहले, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना. अब एक बच्चे के पास तो एक ही माँ है ना, एक पति के पास तो एक ही पत्नी है. The other way around also, if it was a boy तो एक ही तो पति है ना. आप सीईओ हैं यहाँ पर, आप नहीं परफॉर्म करेंगे कोई और कर लेगा. आप लेकिन पत्नी तो आप एक ही हैं, माँ आप एक ही हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है. You got to perform that role well. So that is why I feel that everybody, I may be misunderstood for that part, but so be it. It's a valid point, yeah. It's a valid so be point, yeah. जीविका चलानी है तो एक आदमी को तो बाहर जाना पड़ेगा. तो that's why one person has to go out and earn the bread and come back. So, and no child or no wife would like कि my father is simply sitting home and taking care of me, दिन भर मेरे सेवा कर रहे हैं and all, but he's not going out and earning the bread that is supposed to be done. So, and that's not being a good father if you're not able to earn decent livelihood with honesty and integrity for your kids. So that's also not being a good father. That's a part of your duty. Mother का तो है पहले वो, and if you can add up to that, it's even better. That's even better. But I think that remains. सबको बनना पहले. जी. That's what that was what I find missing in our education system. I ask when I go to schools and colleges, and I ask my parents से भी ये टाइम पूछता हूँ, कहीं के पेरेंट्स को एड्रेस करने बोलते हैं कि आपने क्यों भेजा बच्चा स्कूल. घर से बाहर भेजा ना, लेके आए ना पहली बार, क्यों, क्या सोच के निकल के आए. बच्चे से पूछा बेटा तुम क्यों निकले घर से पहले. तो पढ़ना है, ये करना है, नॉलेज लेना है, 50 आंसर आते हैं. कैरियर बनाना है, ये है करना है, वो करना है, इंटेलिजेंट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, सब आते हैं आंसर. फिर मैं अंत में ये पूछता हूँ अच्छा पिता कौन बनाएगा, अच्छा पति कौन बनाएगा, अच्छा पत्नी कौन बनाएगा.
अच्छी माँ कौन बनाएगा, अच्छी चाची कौन बनाएगा, अच्छी मामी कौन बनाएगा? वो कोई नहीं बनना चाहता। वो हम एज्यूम कर लेते अपने आप हो जाएगा। बाकी के लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम है। That's a good thought. Very good thought for each of us to think about. Yes. And if you look back again, go back into the old education system, ancient Gurukul wala, it was only about With this. that, yeah. Others came naturally. हाँ, Out कोई with करियर बनाने नहीं चाहता था वहाँ। जी। फिर भी वो क्यों गुरुकुल गया था? यही बनने गया था। आज वही पीछे रह गया, बाकी सब आ गए। हर व्यक्ति एक अच्छा करियर ही बनना चाहता है। चलिए परिवार से भी ऊपर उठते हैं तो अच्छा समाज का दायित्व उठा निर्वाह करने वाला सिटीजन कौन बनाएगा? इस देश को सर्वोपरि रखने वाला नागरिक कौन बनाएगा? नॉट एवरी गुड फाइनेंशियल विजर्ड विल बिकम ए, यू नो, तो हर्षद मेहता भी तो फाइनेंशियल विजर्ड ही था। जी जी। राइट, सो यू एट टाइम्स रिग्रेट कि यार तो वैसा हमने शिक्षा दिया ही क्यों उसको? You taught the wrong guy. Someone, because of sheer intelligence, academic brilliance and very sharp mind, reaches the top of the position and does corruption or integrity पे question है, then you feel कि यार इसको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए था ना. We educated the wrong guy. And an educated person, intelligent person with ulterior motive is far more dangerous than a dumb guy. थोड़ी देर के लिए हम सोचें आज की डेट में आप एक इंजीनियर तो एक इमेज आता है, हेलमेट पहना हुआ है ना? अगर सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक इमेज आती है, टाई वाई लगा हुआ है, और डॉक्टर है तो इस सबकी छवि अलग अलग आती है। फौजी है तो वर्दी पहना है, साइंटिस्ट है तो एक अलग छवि आती है, इस तरह का होगा। अभी आप उसको हजारों साल पहले चले जाइए, चिकित्सक है, ऋषि है, तो एक इमेज है। अंतरिक्ष का वो खगोल शास्त्री है आर्यभट्ट, ही इज ए ऋषि। एनी फील्ड, जी, द इमेज दैट यू गेट इज ए ऋषि। तो पहले वो नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत व्यक्ति बनना अनिवार्य है, उसके बाद उस फील्ड का नॉलेज है। Then he is a scientist, then he is a doctor, then he is anything. He could be anything. First thing is got to be a ऋषि। ऋषि मतलब नैतिक और आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत व्यक्ति, जो उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा। उस शक्ति जो ज्ञान उसको देती है, उस शक्ति का वो दुरुपयोग नहीं करेगा। वो राष्ट्र, समाज और ब्रह्मांड के हित में ही करेगा। So that is the first criteria of doing that. Yeah. I think that is what Swami Vivekananda meant when he said Rishihood. So he says that the leaders of the society have never been generals or kings, but rishis. Rishis. This In is India. What, yeah, in India. In this Bharat, is, this is what Rishihood is. That's why the name Rishihood। तो यहाँ पर आप ऋषि वाला तत्व का संचार करने का जो प्रयास कर रहा है, I'm not telling it that it is as great as what it used to be, right. But in today's times, even if you are thinking of doing those things, is a very great step and great leap, and that is why I'm very proud to be associated with Rishihood University, that you're at least attempting to do that. Right. In the modern circumstances, it has its own limitations and challenges, but at least thought to do that, that element of Rishi is very, very important. Very important. Yeah. That is what we call, we say personal, professional, and public impact. Yes. So personal impact is what, how are you growing yourself? Yes. Professional is definitely good career, good job. That's what everybody needs. Everybody needs. And how does it all resonate to create like a public impact? Yes. How does it all resonate to serve your society and yes, mission? yes. Thank you so much, Harsh, for your time. It was great knowing your stories. There's so much to learn from your journey. Thank you so much for sharing with us. Thank you for giving me this opportunity, the platform. It was really a pleasure and an honor to speak to you and personally and to this university. In general, it's always been a pleasure to speak. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar. Namaste.